So we are starting a new chapter, microbes, human welfare. Microbes in human welfare. In this topic, we are going to cover, these are the subtopics. We are going to cover microbes in household products. What are the applications of microbe in household products? What are the application of microbes in industrial products? Uses of microbe in industry, uses of microbes in sewage treatment, uses of microbe in biogas production, बायोकंट्रोल एजेंट, बायो फर्टिलाइजर. ये एक टॉपिक है. अराउंड 3 क्वेश्चंस ये चैप्टर से होते हैं एवरी ईयर. माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर टॉपिक से. ओके, तो सबसे पहले ये टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. इज इट विजिबल? नॉट विजिबल. ओके, तो देखिए यहां पर क्या है. माइक्रोब्स का मतलब क्या है? देखिए यहां पे क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर विच किंगडम एक क्वेश्चन है यहां पर. लिखिए हेडिंग, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. विच किंगडम्स का इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. विच किंगडम्स इंक्लूड माइक्रोब्स. विच किंगडम इंक्लूड माइक्रोब्स. मोनेरा इंक्लूड माइक्रोब्स. प्रोटिस्टा include microbes. Mycota also include microbes. Which kingdom include microbes? लिख लेना डायरेक्ट. Which kingdom include microbes? Monera, Protista, Mycota. These include microbe. फिर आगे एक और क्वेश्चन पूछा है, which are the one that only microscopic microbes. Only microscopic microbes. If I ask question, only microscopic microbes. Only microscopic microbes मतलब Monera and Protista. So इसका मतलब ये हुआ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा तीनों में आएंगे माइक्रोब्स. नोट करें सब लोग नोट्स में. फर्स्ट पॉइंट, which kingdom include microbes? Monera, Protista, Mycota include microbes. Which kingdom include only microscopic microbes? Only microscopic microbes बोल दो, Monera and Protista. टोटल 5 किंगडम्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटा, एनिमलिया. आउट ऑफ दिस 5 किंगडम्स, हाउ मेनी किंगडम इंक्लूड माइक्रोब्स? 3 किंगडम्स में माइक्रोब आ रहे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा. जब क्वेश्चन चेंज हो गया, विच किंगडम्स इंक्लूड ओनली माइक्रोस्कोपिक माइक्रोब्स. ओनली माइक्रोस्कोपिक बोलते दो आ गया आंसर यहां पर, मोनेरा, प्रोटिस्टा. माइकोटा एक्सक्लूड हो गया क्योंकि माइकोटा में कुछ ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म लार्ज हैं. मशरूम से फॉर एग्जांपल, मशरूम which kingdoms का इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म.
Which kingdoms? Which kingdoms include microbes? Which kingdom include microbes? Monera include microbes. Protista include microbes. Mycota also include microbes. Which kingdom include microbes? लिख लेना direct. Which kingdom include microbes? Monera, Protista, Mycota. These include microbe. फिर आगे एक और क्वेश्चन पूछा है. Which are the one that only microscopic microbes? Only microscopic microbes. If I ask question, only microscopic microbes. Only microscopic microbes मतलब Monera and Protista. So इसका मतलब ये हुआ मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा तीनों में आएंगे माइक्रोब्स. नोट करें सब लोग नोट्स में. फर्स्ट पॉइंट, which kingdom include microbes? Monera, Protista, Mycota include microbes. Which kingdom include only microscopic microbes? Only microscopic microbes also Monera and Protista. टोटल 5 किंगडम्स हैं. मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटा, एनिमलिया. आउट ऑफ these 5 kingdoms, how many kingdom include microbes? 3 kingdoms में माइक्रोब आ रहे हैं. मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा. जब क्वेश्चन चेंज हो गया, which kingdoms include only microscopic microbes? ओनली माइक्रोस्कोपिक बोलते दो आ गया आंसर यहां पर. मोनेरा, प्रोटिस्टा. माइकोटा एक्सक्लूड हो गया क्योंकि माइकोटा में कुछ ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म लार्ज हैं. मशरूम से फॉर एग्जांपल, मशरूम बिलोंग्स टू किंगडम माइकोटा और मशरूम जो है माइक्रोस्कोपिक नहीं होता. क्लियर है? क्लियर है? दो अलग अलग क्वेश्चन है. विच किंगडम इंक्लूड माइक्रोब्स? मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा. Which kingdoms include only microscopic microbes? Monera and Protista. Why Mycota is excluded here? Because some microbes in Mycota are large, macroscopic. Microbes कहाँ मिलेंगे आपको? Microbes found in, लिखिए. Microbes found in. लिखिए next point. Microbes found in air, water, soil. Air, water, soil, inside our body, on our body. माइक्रोब कहां मिलेंगे? एयर, वाटर, सॉइल में तो मिलेंगे ही मिलेंगे. डीप नेचुरल थर्मल वेंट्स. डीप नेचुरल थर्मल वेंट्स ब्रैकेट में लिखिए गीजर्स जहां पे वाटर बॉयल हो रहा है. मतलब जनरली वी थिंक देयर इज नो लाइफ इफ वाटर इज बॉइलिंग. लेकिन यहां पे बताया गया है बॉइलिंग वाटर में भी माइक्रोब हो सकते हैं. एयर, वाटर, सॉइल ये तो क्लियर होगा. डीप नेचुरल थर्मल वेंट्स, डीप इनसाइड द अर्थ के अंदर, वहां पे भी माइक्रोब्स हैं. थर्मल वेंट्स, थर्मल बोल तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, थर्मल वेंट्स. गीजर्स बोल रहे हैं उनको, वहां पर भी माइक्रोब्स हैं. इवन एट 100 डिग्री सेल्सियस, इवन एट 100 डिग्री, अगर 100 डिग्री सेल्सियस भी आया तब भी माइक्रोब मिल जाएंगे. अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो, अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो, अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो. स्नो आइस में भी,
Where microbes are present? Microbes are present everywhere. We are surrounded with ocean of microbes. We are surrounded by ocean of microbes. डेली लाइफ में hundreds of microbes से हम interact करते हैं. Hundreds of microbes, they enter inside our body through food, air, water, soil. माइक्रोब हर जगह पर हैं. थर्मल वेंट्स बॉइलिंग वाटर में भी हैं, स्नो में भी हैं, आइस में भी मिलेंगे, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी माइक्रोब्स मिलेंगे आपको. समझ गए बात? मतलब इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहे हैं, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर ये बोलना चाह रहे हैं. क्लियर है? नेक्स्ट. और क्या बताया यहाँ पे? Microbes include which organism? Microbe include diverse organism. Microbe include diverse group of organism. लिखिए, microbes show great diversity. माइक्रोब में बहुत सारे टाइप्स हैं. माइक्रोब मीन्स नॉट जस्ट वन टाइप, इट इज इंक्लूडिंग मेनी मेनी टाइप्स. डाइवर्स ग्रुप. इसमें आएंगे बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक, plant and animal virus, animal viruses, plant viruses, animal viruses, वायरॉइड भी आएंगे इसमें, प्रायॉन्स भी आएंगे. दीज आर ऑल माइक्रोब्स. प्रोटोजोआ भी मिलेगा यहां पर. प्रोटोजोआ इज आल्सो इंक्लूडेड. सो माइक्रोब शो ग्रेट डाइवर्सिटी, मेनी टाइप्स, बहुत ज्यादा टाइप्स. इसको इंक्लूड डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. लिखिए, माइक्रोब्स शो ग्रेट डाइवर्सिटी. माइक्रोब में बहुत सारे टाइप्स हैं. माइक्रोब मीन्स नॉट जस्ट वन टाइप, इट इज इंक्लूडिंग मेनी मेनी टाइप्स. डाइवर्स ग्रुप. इसमें आएंगे बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक, प्लांट एंड एनिमल वायरस, एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस, वायरॉइड भी आएंगे इसमें, प्रायॉन्स भी आएंगे. दीज आर ऑल माइक्रोब्स. प्रोटोजोआ भी मिलेगा यहां पर. प्रोटोजोआ इज आल्सो इंक्लूडेड. सो माइक्रोब शो ग्रेट डाइवर्सिटी, मेनी टाइप्स, बहुत ज्यादा टाइप्स. इसमें देखिए वायरॉइड, वायरॉइड आया. वायरॉइड का मतलब क्या है? व्हाट आर वायरॉइड्स? वायरॉइड्स आर आरएनए infectious particle. What are viroids? RNA infectious particles. नोट कर रहे हैं सब लोग? वायरॉइड, आरएनए इन्फेक्शियस पार्टिकल. प्रयान, प्रयान क्या है? प्रोटीनेशियस infectious particle. There are two different things. Viroids, RNA infectious particle. Prion, proteinaceous infectious particle. Whether microbe is a homogeneous group or heterogeneous group. क्या बोलना चाह रहे हैं आप? Microbes are homogeneous or heterogeneous? Heterogeneous मतलब there are various types, बहुत सारे types. Can we see bacteria with our naked eyes? Can we see bacterial colony with naked eyes? Yes, bacterial colony and fungal colony can be seen
with naked eyes without any microscope we can see bacterial colony, fungal colony देख सकते, सिंगल बैक्टीरिया नहीं देख सकते। समझ गए? यहां लिखेंगे पॉइंट, बैक्टीरियल एंड फंगल, बैक्टीरियल एंड फंगल colonies can be seen with naked eyes, मतलब माइक्रोस्कोप यूज करे बगैर देख सकते हैं, कॉलोनीज देख सकते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगस can be grown in culture media, कल्चर मीडिया में ग्रो कर सकते हैं बैक्टीरिया और फंगस को, कल्चर मीडिया में ग्रो कर सकते हैं बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो कर सकते हैं कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया मीन्स व्हाट? न्यूट्रिएंट मीडियम। कल्चर मीडियम मीन्स न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइडेड विथ ऑल न्यूट्रिशन, फूड वाटर सब जो भी चाहिए उनको दे देना वहां पे कल्चर मीडियम में, दे ग्रो। ये था इंट्रोडक्शन पेज। अब इंट्रोडक्शन पेज से अगर कोई क्वेश्चन निकल रहा है तो क्या निकलेगा, क्या निकल सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज वायरॉइड एंड प्रायोन, वायरॉइड एंड प्रायोन, या स्टेटमेंट बना बना के पूछ रहे हैं, माइक्रोब इंक्लूड प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगाई, एक्सक्लूडिंग वायरॉइड एंड प्रायोन्स। रॉन्ग, रॉन्ग है स्टेटमेंट, ये तो करेक्ट है, वायरॉइड भी आता है उसमें, प्रायोन भी आता है। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही इंट्रोडक्टरी पॉइंट है, इंट्रोडक्शन है ये, लेकिन इंट्रोडक्टरी पॉइंट से भी कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, अगर पॉइंट है वायरॉइड इंक्लूडेड इन बैक्टीरिया ग्रुप, रॉन्ग। वायरॉइड बैक्टीरिया में आता क्या? बैक्टीरिया अलग, वायरॉइड अलग, वायरस अलग, वायरस अलग है, वायरॉइड अलग, प्रायोन अलग। वायरॉइड प्रायोन्स के बारे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है, वायरॉइड एंड प्रायोन्स। Viroids, they are just RNA particles, not having cell, not having DNA, not having protein, just RNA particles, RNA particles. Prion, protein particles. Proteinaceous infectious particle को क्या बोले? Prions. Proteinaceous infectious particle, prion. RNA infectious particle, viroids. बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो कर सकते हैं। यहां पे वायरस बोला क्या? वायरसेस कैन बी ग्रोन। कैन वायरसेस ग्रोन ऑन कल्चर मीडिया? नो, वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन। बैक्टीरिया एंड फंगस कैन बी ग्रोन इन कल्चर मीडिया। यहां पे कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, राइट है या रॉन्ग है बोलना है आपको। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, माइक्रोब्स यूबिक्वाइटस, लिखिए सब लोग, माइक्रोब्स आर यूबिक्वाइटस। एक्चुअली ये चैप्टर से डरना चाहिए आप लोग, इट्स वेरी डेंजरस टॉपिक, ओके। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, क्योंकि सबको लग रहा है ना ये इजी है, आएगा डेंजरस क्वेश्चन, गारंटीड। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको आसान लगता है ना, बड़ा डेंजर क्वेश्चन आएगा उससे, ऐसी लाइन आएगा वहां जो आप यूजुअली नेग्लेक्ट कर रहे होंगे। तो जो इजी टॉपिक रहता है उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता, जो डिफिकल्ट टॉपिक होता है उससे इजी क्वेश्चन आता। माइक्रोब्स आर यूबिक्वाइटस, स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? राइट है। सेकंड, यूबिक्वाइटस का मीनिंग समझते हैं? यूबिक्वाइटस का मतलब एवरीवेयर,
एवरीवेयर. कॉस्मोपॉलिटन भी चलेगा. यूबिक्विटस के लिए और एक वर्ड, कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन. माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक माइक्रोब्स. Microscopic microbes included in Monera and Protista. Whether the statement is right or wrong? Right. कॉस्मोपॉलिटन भी बोल रहे हैं माइक्रोब्स को. कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह मिलने वाले, एवरीवेयर. माइक्रोब्स डाइवर्स ग्रुप. माइक्रोब्स आर डाइवर्स ग्रुप. डाइवर्स ग्रुप मतलब वेरियस टाइप्स होते हैं माइक्रोब्स में. यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट. माइक्रोब्स डाइवर्स ग्रुप, वेरियस टाइप्स. और कोई इंपॉर्टेंट लाइन ये पेज से? Prions lack genetic material. Prions lack genetic material. Yes, right है ये. Prions lack genetic. ना तो आरएनए है ना तो प्रोटीन है. ना तो आरएनए है ना तो डीएनए, जस्ट प्रोटीन है. प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता. प्रोटीन कैन नॉट बी जेनेटिक मटेरियल. प्रायन में जेनेटिक मटेरियल ही नहीं. ऐसा स्टेटमेंट क्या मैं वायरॉइड के लिए बोल सकता हूं? वायरॉइड्स लैक जेनेटिक मटेरियल. रॉन्ग. वायरॉइड्स के अंदर आरएनए तो है एटलीस्ट. आरएनए कैन बी जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. और एक स्टेटमेंट, वायरॉइड्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट. वायरॉइड्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट. ट्रू. क्योंकि वायरॉइड में डीएनए है नहीं, जस्ट आरएनए है, तो मॉलिक्यूलर वेट कम ही रहेगा उसका. और ये इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि ये लाइन भी है फर्स्ट ईयर में. लाइन है फर्स्ट ईयर की बुक में, वायरॉइड्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट. Prions are also microbes. Prion wrong. Correct. क्या बोलेंगे? Prions are also microbes. Prions are also microbes. Correct है. Prions भी माइक्रोब ही होते हैं. वायरॉइड्स भी माइक्रोब हैं. प्रोटोजोआ भी माइक्रोब है. देखो फर्स्ट पेज में इतने पॉइंट्स हमको मिले. ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं वायरॉइड्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर टू वायरसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि वायरसेस का मतलब है दे हैव डीएनए और आरएनए प्लस प्रोटीन. वायरसेस में प्रोटीन भी होता है, डीएनए होता है, ना तो आरएनए होता है. वायरॉइड में ओनली आरएनए, प्रायन में ओनली प्रोटीन. वायरस में डीएनए प्लस प्रोटीन और आरएनए प्लस प्रोटीन. अब यहाँ पे ये पेज पे देखिए फोटोग्राफ बताया है. वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोब, वी आर सराउंडेड बाय माइक्रोब्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज ए काइंड ऑफ बैक्टीरिया. रॉड शेप बैक्टीरिया दिख रहे हैं आपको. रॉड शेप बैक्टीरिया, दीज आर बेसिलस बैक्टीरिया. कौन से बैक्टीरिया हैं? बेसिलस बैक्टीरिया, रॉड शेप. एंड these bacteria they are spherical shape, coccus bacteria. These bacteria is rod shape with flagella. रॉड शेप विथ फ्लैजिला को रॉड शेप बैक्टीरिया है ये. बेसिलस बोलना. ये भी बेसिलस है, स्टार्टिंग भी बेसिलस है. दोनों में डिफरेंस क्या है?
मैग्निफिकेशन में डिफरेंस, मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा बड़ा करके देख रहे हैं तो ये दिख रहा है बैक्टीरिया, और छोटा करके देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रॉड शेप स्टार्टिंग 1500x में दिख रहा था। व्हाट इज 1500x? 1500x बोल तो 1500 टाइम्स। माइक्रोस्कोप जो आप लैब में देखे होंगे, लेबोरेटरी में, बायोलॉजी लैब में, वो 1500x का है, 4000x का भी होता है। तो बैक्टीरिया जो है 1500x में देखे तो ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे मतलब 1500 टाइम्स बैक्टीरिया को बड़ा करके देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है। और स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया ये भी 1500x में देख रहे हैं, दिस इज आल्सो 1500x। और ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला 50,000x में दिख रहा है। मतलब आपके पास एक माइक्रोस्कोप चाहिए जो कितने टाइम बड़ा करता होगा ऑब्जेक्ट को, 1500 टाइम्स बड़ा करके दिखाता होगा। बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला देखना। इफ यू वांट टू सी फ्लैजेला यू हैव टू गो फॉर 50,000x। और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं इधर, ये वायरस है। टोटल 3 वायरसेस के फोटोग्राफ बताए। दिस इज वन बैक्टीरियोफेज, सेकेंड वन एडिनो वायरस है, ये एडिनो वायरस विच कॉजेस इंफेक्शन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, थ्रोट में इंफेक्शन करने वाला एडिनो वायरस। ये तो बैक्टीरियोफेज है। दिस इज अ बैक्टीरियोफेज विच अटैक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को अटैक करने वाला बैक्टीरियोफेज। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करने वाला एडिनो वायरस, नोट करेंगे इसको बाद में। और ये रॉड शेप वायरस दिख रहे हैं, रॉड शेप वायरस, दीज आर टीएमवी। क्या है? टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। Viruses magnification are done 1 lakh to 1,50,000 times। मतलब बैक्टीरिया जस्ट 1500 टाइम्स बड़ा करते ही दिखना शुरू हो गया था बैक्टीरिया। वायरस को अगर आप देखना है तो वो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कितने टाइम बड़ा करना, 1 लाख टू 1,50,000 टाइम। जैसे कि मान लीजिए ये पेन आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है समझिए, और इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन बढ़ाना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, और इसको एनलार्ज करना पड़ेगा। कितने टाइम्स? 1 लाख टाइम, 1,50,000 टाइम, तब दिखना शुरू हो रहा है वायरस। दिस इज पॉसिबल ओनली इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स में ही होते हैं। ये जो 1500x का जो माइक्रोस्कोप है वो तो नॉर्मल हर जगह मिल जाता है। And here you can see there are two colony growth culture plates। ये कल्चर मीडिया है, कल्चर मीडिया। इसको ये ग्लास डिश होती है, इसे ग्लास डिश, इट इज आल्सो कॉल्ड पेट्री डिश। और वो पेट्री डिश में कल्चर मीडिया रखते हैं। कल्चर मीडिया सॉलिड मीडियम होता है, जैसे उसमें कार्बन सोर्स, प्रोटीन सोर्स, मिनरल्स, वाटर, सब चीज रख देते हैं। तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं। ये जितने डॉट्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर ऑल बैक्टीरियल कॉलोनीज। क्या है? बैक्टीरिया के कॉलोनी देख सकते हैं। और ये है फंगस की कॉलोनी। कौन सी कॉलोनी है? फंगस कॉलोनी। ये फंगस की कॉलोनी। अब एग्जामिनर क्या पूछता कि इसको भी नहीं मालूम रहता, क्या भी पूछ सकता है वो, हम गेस करके जाते हैं ये नहीं पूछेगा, वही पूछ लेगा। बैक्टीरियल कॉलोनी एंड फंगल कॉलोनी। इसके लिए कितना मैग्निफिकेशन पावर चाहिए? नॉर्मल आइज के साथ देख सकते हैं, वही लिखे ना पॉइंट ऑलरेडी। बैक्टीरियल एंड फंगल कॉलोनीज कैन बी सीन। colonies of bacteria growing in petri dish
फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन पेट्री डिश। दो कॉलोनी यहां पर, ये बैक्टीरियल कॉलोनी, ये फंगल कॉलोनी। कितना याद रखें देखेंगे आप। अगर जस्ट बैक्टीरिया को देखना है, जस्ट देखना है, बैसिलस और रॉड शेप, बैक्टीरिया देखना है एट व्हाट मैग्निफिकेशन पावर, 1500x, 1500x मतलब 1500 टाइम्स, 1500 टाइम्स। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ एक डायग्राम बना रहा हूं। ये माइक्रोस्कोप ऐसा होता है ना, ऐसा माइक्रोस्कोप होता है इधर, यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, राइट। यहां पर एक नंबर लिखे हुआ रहता है, ये या लेंस के ऊपर एक नंबर लिखे हुआ रहता है। वो नंबर, वो नंबर के ऊपर लिखा हुआ रहता है 10x, 100x, 1500x, 50,000x। वो लेंस वैसा रहता हो, डिपेंडिंग अपॉन लेंस मैग्निफिकेशन। 1500 टाइम हो गया, ये 1500x, x बोले तो। नेक्स्ट है, ये बैक्टीरिया कौन से थे? कोक्कास बैक्टीरिया। कोक्कास मतलब स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। क्या मैग्निफिकेशन लगा था इसके लिए? कितने मैग्निफिकेशन में? 1500x, 1500x। हमारे पास अब कितना, मतलब रिसर्च कितना हुआ है, कितने टाइम मैग्निफिकेशन कर सकते हैं एट प्रेजेंट? 1 लाख to 1,50,000 टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बड़ा करके। जस्ट इमेजिन करो, पोलन ग्रेन 25 से 50 माइक्रोमीटर का, पोलन ग्रेन 25 से 50 माइक्रो, अगर उसको लगा दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो पोलन ग्रेन कितना बड़ा दिखता होगा, और उसके सारे स्ट्रक्चरल डिटेल्स देख सकते हैं, एक्साइन लेयर, इंटाइन लेयर, सेम ऐसे ही। अब नेक्स्ट, बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला ड्रॉ कर रहा हूं। बोलो ये बैसिलस या कोकस? बैसिलस बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला, इफ यू वांट टू सी, विथ फ्लैजेला एट व्हाट मैग्निफिकेशन? हाँ, अब भी हो गया तुम्हारा टाइम, 50,000x, 50,000x। 1,50,000 वायरस के लिए है, बैक्टीरिया के लिए नहीं। मतलब बैक्टीरिया को अगर आप डिटेल देखना है, डिटेल क्वेश्चन आ गया, डिटेल व्यू ऑफ बैक्टीरिया कैन बी ऑब्टेन्ड एट 50,000x बोलना चाहिए, डिटेल व्यू। हाँ नेक्स्ट, एक वायरस था ना, वो कौन सा? बैक्टीरियोफेज। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। देखिए अभी क्या हुआ है ना, सिलेबस रिड्यूस तो हो गया बल्कि सब लोग खुश हो रहे हैं। एक्चुअली मैं अगर बताऊं तो सिलेबस रिड्यूस होना एक बहुत ही डेंजर न्यूज है आपके लिए, बिकॉज क्योंकि
सिलेबस कम होना मतलब ये बहुत डेंजर चीज है, क्योंकि सब लोग अब पढ़ेंगे, सब लोग माइन्यूट डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो अब एरर्स के चांसेस बहुत ही कम हो गए। जस्ट इमेजिन करो, लास्ट ईयर जो केमिस्ट्री की बुक थी या बायो की बुक थी, उसमें से कितने पेजेस कम हुए होंगे? ऑल टुगेदर फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिलाकर जो है अराउंड 150 पेजेस डिलीट हुए हैं। मतलब लास्ट ईयर 150 पेजेस ज्यादा पढ़ते थे बच्चे, अब कम पढ़ना है 150 पेजेस। तो अब जो पढ़े उस चीज को बार बार पढ़ेंगे बच्चे, बार बार पढ़ेंगे तो एरर्स खत्म हो जाएंगे, नेगेटिव्स खत्म हो जाएंगे, मार्क्स बढ़ जाएंगे, कट ऑफ बढ़ेगा। तो आप जो है कोई थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करना, आप माइन्यूट एक एक माइन्यूट चीज देखते जाना चाहिए आप, यह है इंपॉर्टेंट। एक वायरस था यहां पर ऐसे ड्रॉ किए हुआ बुक में, एक वायरस था ऐसा, क्या नाम इसका? ये है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का ये हेड है, फिर ये कॉलर है, ये क्या है? टेल फाइबर्स हैं, ऑल्सो कॉल्ड प्रॉन्ग्स, और यहां पर नीचे जो है कुछ पिन्स हैं लगे हुए। थोड़ा सा लेबलिंग में डिफरेंस है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक में, थोड़ा सा केयरफुल रहना है यहाँ पे। हेड, कॉलर, और कोई लेबल दिया है क्या सेकेंड ईयर की बुक में? कौन सा दिया है? नेक, प्लेट, यहां पर एंड प्लेट, ये प्लेट, प्लेट इज प्रोवाइडेड विथ पिंस। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? अच्छा, बुक में कॉलर इधर नीचे लिखा है क्या? कॉलर वो नीचे लिखा है, लेकिन फर्स्ट ईयर की बुक में ये ऐसा डायग्राम है, करेक्ट डायग्राम ये है। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का थोड़ा डायग्राम चेक कर लेना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में ये करेक्ट है। अब जो ड्रॉ करें, बैक्टीरियोफेज मतलब क्या है? वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। कौन से मैग्निफिकेशन में? एट 1 लाख टू 1 लाख टू 1,50,000 मैग्निफिकेशन में। ये एक हो गया। और कौन सा वायरस था वो? एक वायरस ऐसा भी था, देखिए, जस्ट ऐसा स्ट्रक्चर याद रख लिया तो बस है रफली। एडिनो वायरस, हाँ, एडिनो वायरस कहां पे इंफेक्शन करता है? एडिनो वायरस वेर इट इन्फेक्ट? एडिनो वायरस इन्फेक्ट इन्फेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन्फेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका भी मैग्निफिकेशन कितना है? 1 लाख टू 1,50,000। वायरसेस का हमेशा 1 लाख टू 1,50,000 कॉमन दिया है बुक में तीनों के लिए। एक और वायरस है रॉड शेप, इस टाइप का वायरस भी था, देखो बुक में डायग्राम।
ये है टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस। Tobacco mosaic virus infects tobacco plant. Tobacco plant. Magnification power again 1 lakh to 1 lakh 50,000 magnification. और दो डायग्राम दिए हुए थे बुक में. बैक्टीरिया एंड फंगस कैन बी ग्रोन इन कल्चर मीडिया. और अगर पेट्री डिश में बहुत सारे कॉलोनीज हैं, बहुत सारे कॉलोनीज है तो क्या बोलेंगे? बैक्टीरियल कॉलोनीज. बैक्टीरियल कॉलोनीज इन पेट्री डिश. और फंगस की कॉलोनी एक ही है, सिंगल फंगस कॉलोनी इन पेट्री डिश. टोटल कितने हेडिंग्स हैं चैप्टर में? माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में टोटल कितने साइड हेडिंग है? माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब इन बायोगैस प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर. टोटल 6 हेडिंग्स हैं. बहुत ही सिंपल चैप्टर है, पढ़ेंगे आराम से. यहां तक इंट्रोडक्शन कवर कर लेके आइए. सिंपल है, इसका मतलब आप लाइट नहीं लेना, एवरी डिटेल देखना. हो सकता है, देखो, हो सकता है कोई स्टूडेंट जो है माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर पूरा चैप्टर पढ़ के गया, पूरा एक चीज नहीं देखा हो. एडिनो वायरस इन्फेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल के नहीं देखा, वो आ गया तो क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ के गया. यू नो वेरी वेल दिस चैप्टर इज हैविंग हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है. नोट कर लिया सब? चल, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू कर लेंगे टॉपिक. थैंक यू. नहीं, पूरा वायरस उतना ही है, एडिनो वायरस. एडिनो वायरस ऐसा जस्ट में वो रफ स्ट्रक्चर दिया हो आइडेंटिफाई करने के लिए. अगर डायग्राम आ गया तो हेक्सागोन आ गया तो बोल देना एडिनो वायरस है बोल. ओके, थैंक यू.